أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. The Institute of Cost Management Accountants of Pakistan. To know who we are. Established on the 23rd of May 1951 as the Pakistan Institute of Industrial Accountants, PIIA. Our founder member, Muhammad Shoaib, former Finance Minister of Pakistan, Senior Vice President World Bank and the founder of Institute of Cost Accountants India pre-partition. 1955 saw the commencement of our first ever coaching classes. The very next year, coaching classes began at Rawalpindi and Wah. Coaching classes began at Lahore in 1957. The establishment of the Institute's own building at Soldier Bazaar, Karachi happened in 1960. Chartered in 1966 under the Cost and Management Accountants Act, we were entrusted for regulation
and promotion of the management accounting profession in Pakistan. Coaching classes began at Quetta in 1970. In Peshawar in 1972. The institute established its own building at Lahore in 1973. Coaching classes began at Islamabad in 1973. Then Faisalabad, followed by the establishment of the institute's own building at Islamabad in 1984. The institute established its head office building at Karachi in 1992. 1996 saw the establishment of the institute's own building at Multan, and 2013 saw the establishment of the ICMA Pakistan's operated campus at North Nazimabad, Karachi. The very same year, the establishment of ICMA Pakistan's operated campus at Hyderabad happened. 2013 also saw the establishment of ICMA Pakistan's operated campuses at Rawalpindi, Quetta, Faisalabad and Peshawar. And now to understand our global affiliations, international, regional and South Asian. We were the founding members of the International Federation of Accountants, IFAC, since 1977, founding member of the Confederation of Asian and Pacific Accountants, CAPA, since 1980, and founding members of the South Asian Federation of Accountants, SAFA, since 1984. To understand what we offer, our educational pillars: business accounting and finance, business management and leadership, and business laws and ethics. The three pillars of ICMA education: 1-year CMA, operational level certificate; 2-year CMA, managerial level certificate; 3-year CMA, strategic level certificate; and 4-year CMA, professional competence level. Major courses: CMA operational level, business economics, cost accounting, commercial laws and professional ethics; CMA managerial level, financial accounting, enterprise management, information systems and IT audit, management accounting, business taxation. Major courses: CMA strategic level, advanced financial accounting and corporate reporting, risk management and audit, strategic financial management, strategic management accounting, investment analysis and portfolio management, as well as strategic management. Training modules: business accounting, ERP, business finance, business laws and ethics, business management and leadership. Education methodology: classroom lectures, presentations, case studies, journal reviews, updating of laws, e-learning, role model sessions, group discussions, situation analysis, industry visits, guest speeches, and executive coaching. ICMA Pakistan's infrastructure and facilities. Professional qualifications: FCMA, ACMA, CMA. Continuing professional development, CPD methodology, seminars and conferences, trainings and workshops, expert talks, panel discussions, roundtable discussions, guest speaker sessions, webinars. School of Certified Directors. Directors Training Program is meant for CEOs, CFOs, COOs and directors, etc. to enhance their capacity to assume the role of decision makers and fulfill the requirement of the Code of Corporate Governance to become board members of listed companies. It equips participants with the latest knowledge of financial management, economics and business management. Introducing our members. Over 5,000 members, with more than 900 serving abroad. The industries and sectors where ICMA Pakistan's members are serving: agriculture and fertilizer, auto and allied industries, aviation, banks and MBFIs, brokerage and securities, cement, chemical, construction and housing, consulting, education, engineering and electrical goods, energy and power generation, FMCGs, food and beverages, government and ministries, healthcare, hotel and tourism, information technology, iron and steel, media and broadcasting, NGOs, oil and gas, paper, printing and packages, pharmaceutical, sugar, telecommunication, textile, trading, import and export. Our leading professionals
Our qualification. It is the practical science of value creation to achieve efficiency within organizations. It combines the latest techniques of finance and management to perform leadership roles to drive the business successfully. A professional with comprehensive knowledge and skills in the areas of accounting, finance, management, leadership, laws and ethics, with the competency to develop business plans, devise financial strategies, ensure implementation, set up effective controls, and make tactical decisions for the growth and sustainability of the organizations. Global existence of profession. Canada, United States, United Kingdom, Nigeria, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh and Australia. Over 270,000 management accountants exist across the globe. Our institute. Theology. The writer among you shall document with justice. Vision. To be the preference and value optimization for business. Mission. To develop business leaders through imparting quality education and training in financial and non-financial areas to bring value addition in the economy. Core values. Competence, innovation, ethics, transparency and professionalism. Governed by the National Council and having 8 members, elected by members of the Institute and 4 nominees, nominated by the Ministry of Finance AGP, SECP, 15,000 students within and outside Pakistan. More than 250 faculty members nationwide. Over 200 employee strength nationwide. 11 campuses nationwide. 7 branch councils. Our activities. Education. Examine competencies. Confer certifications. Ensure continuing professional development. And with that, the history of ICMA up to this day is complete. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much, the Ministry of Federal Education and Professional Training and your principal, your staff, and last but not the least, my dear students. Thank you so much कि आप लोग आज यहाँ आए और आज का सेमिनार आज हम अटेंड करेंगे. First of all, introduce myself. My name is Aiza Ehsan and I am representing ICMA Pakistan. We call it as ICMA International and with me my team, Ms. Noor, Ms. Rimsha. हम लोग कोशिश करेंगे कि आज आपको as much as information दे सकें regarding ICMA and the education we are offering, that is called Chartered Management Accounting Certification. आपने वीडियो देखी, थोड़ा सा बोरिंग हुआ जरूर होगा because it was quite long, but मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन से आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकूं, आपके रिक्वायर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे सकूं बाय द एंड ऑफ द सेशन. और कोशिश कीजिएगा मुझसे एज मच एज क्वेश्चंस पूछ सकें ताकि आपकी कंफ्यूजन्स दूर हो सके. बिकॉज प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि स्टूडेंट का माइंड कहीं और होता है, वो क्वेश्चंस उस वक्त नहीं पूछ सकता. सो क्वेश्चन आंसर सेशन एक ऐसा सेशन होता है कि जिसमें आप जो है वो जितना क्वेश्चंस पूछेंगी आपको उतनी क्लैरिटी होगी और आपका जो माइंड है वो आपका क्लियर होता चला जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ. अपनी इंट्रोडक्शन दूंगी आईसीएमए का. आईसीएमए सबसे पहले हम चले हाइलाइट्स की बात करते हैं. ये आपको कुछ हाइलाइट्स नजर आ रही होंगी कि क्या हम इसमें बात करेंगे अबाउट आईसीएमए. ओके, so the main highlights of this presentation. We will talk about ICMA, right? After that, future CMA journey, career opportunities for CMAs, success stories of ICMA corporate leaders in the next step. So, सबसे पहले आपको बताते चलूं, ICMA was established in 1951. कब इदारा बना था? 1951 में बना था. It was not a new institution. It was very old. ठीक है,
1951 में बना था and ICMA International is recognized as the pioneer institute for imparting the quality education in the profession of management accounting in Pakistan. It was the pioneer institute, सबसे पहला इदारा था जिसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तालीम को दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तालीम को फरोग दिया, अकाउंटिंग की तालीम को आगे बढ़ाया. ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम बताएंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग की तालीम क्या होता है. तो सबसे पहला इदारा था जिसने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तालीम को दिया. जो मेन मिशन है हमारा, वी वांट बिजनेस लीडर्स, हम आप जैसे स्टूडेंट्स में से बिजनेस लीडर्स आगे लेके जाना चाहते हैं. सो द मेन मिशन ऑफ ICMA इज टू रेगुलेट and promote the profession of accounting by empowering the profession to reach the new heights of success. ICMA is enacted through Act of Parliament. ICMA is the semi-government institution, Ministry of Finance के अंदर आता है. It is not a private institution. ये एक semi-government इदारा है जो कि CMA की तालीम देता है. मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है? नो, it is a semi-government institution under regulated by Ministry of Finance. Semi-government है. It's acted through the Act of Parliament. We take the pride in providing the top-notch education, assessing the competency and conferring international recognized postgraduate professional certification. I repeat, this certification is equivalent to postgraduate professional certification. Postgraduate means it's equivalent to the master's degree. It's equivalent to the master's degree and professional certification. Professional certification is that type of certification जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, राइट? आगे मैं आपको बताऊंगी कि स्पेशलाइजेशन क्या होती है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन क्या होती है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी बताना ज्यादा बेहतर होगा. There are two type of qualification in Pakistan and international also, but हम अभी की बात करेंगे. एक होती है आपकी एकेडमिक डिग्री और एक होता है आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ये प्रोफेशनल डिग्री. एकेडमिक डिग्री आपकी प्रोग्रेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उसके बाद आप बैचलर्स करेंगे, BS. मैं बिजनेस स्टडीज की अगर जैसे बात करूं तो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BBA है, बैचलर्स की डिग्री लेंगे, उसके बाद आप मास्टर्स भी ऑब्वियसली जरूर करेंगे, MBA MCOM है. सो ये स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोग्रेशन हो रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बैचलर्स की डिग्री लेते हैं, देन मास्टर्स की लेते हैं, देन आप MS भी करेंगे, PhD भी करेंगे उसी डिग्री में. ये आपकी एकेडमिक डिग्री है, इसमें कहीं भी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मींस कि आपकी एक तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है. सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन है. तो डिफरेंस बिटवीन द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इज कि एकेडमिक प्रोफेशनल आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आपकी स्पेशलाइजेशन है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि एक डॉक्टर है, अगर वो एकेडमिक डिग्री पहले लेता है लाइक MBBS, 5 years का एकेडमिक डिग्री है, एंड देन ही मस्ट गो फॉर स्पेशलाइजेशन. कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन सकता है, एक स्पेसिफिक फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन करेंगे. ठीक है, तो जो वो स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेगा वो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेगा. एंड आप ये देखिए कि हम हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ऐसे ही है ना. तो स्पेशलिस्ट वो होता है जो कि स्पेशलाइजेशन करके आ रहा है. इन बिजनेस स्टडीज स्पेशलाइजेशन जो होती है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती है, राइट? जब आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आती है, फाइन. सो ICMA जो है वो आपको एक स्पेशलाइजेशन देता है इन बिजनेस स्टडीज. CMA, that is called Chartered Management Accounting, specialization in Chartered Management Accounting certification. So ICMA is a vibrant ecosystem of knowledge and growth. जब आप professional certification करते हैं, you have a wide knowledge of
अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट और इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. ओके, लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीएमए और कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने हमारे एम्प्लॉयज हैं, कितनी ब्रांचेज हैं. जैसे वीडियो में बताया तकरीबन इस वक्त 17,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल हैं जो कि आईसीएमए में पढ़ रहे हैं. 7,500 आप देख सकते हैं मेंबर है. अब ये मेंबर कौन है? ये मेंबर वो हैं जो कि आईसीएमए को पास आउट कर चुके हैं. अकाउंटेंट्स हैं, लीडिंग कंपनीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी. इसके अलावा सर्टिफाइड डायरेक्टर्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स आपने देखा, एम्प्लॉयर्स हैं, कैंपसेस 10 से 11 कैंपसेस हैं, फैकल्टी मेंबर्स 450 प्लस हैं. इसके अलावा जो हमारी पब्लिक प्रैक्टिसिंग कंपनीज हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनीज तकरीबन 200 से ज्यादा वो लोग हैं जो कि आपके क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, आईसीएमए पास कर चुके हैं और उनकी अपनी फर्म्स हैं. ठीक है, तो 200 से ज्यादा फर्म्स हैं जो कि आईसीएमए के क्वालिफाइड मेंबर्स जो कि पास आउट सीएमए कर चुके हैं उनकी फर्म्स हैं. ओके, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? बिकॉज देखो, जब आप कोई भी डिग्री लेते हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन जरूर किया करिए कि क्या वो डिग्री की इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है या नहीं है. चाहे कोई भी डिग्री लीजिए, लाइक आप बीए कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई भी डिग्री, कोई भी सब्जेक्ट, अगर इफ यू वांट टू मूव अब्रॉड, बाहर के कंट्री में शिफ्ट कौन होना है, इन फ्यूचर बाहर जाने के चांसेस हैं, आपकी प्लानिंग की हुई है, तो फिर ये आपके माइंड में जरूर होना चाहिए कि क्या आपकी जो डिग्री जो इस वक्त आप लेंगे या फ्यूचर में आपके प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है. बिकॉज फ्यूचर में अगर आपने जॉब करनी है तो यू मस्ट हैव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन डिग्री और सर्टिफिकेशन. ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि इसकी रिकॉग्निशन बाहर के कंट्रीज में भी होनी चाहिए. सो सीएमए have international recognition outside Pakistan also. अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ये जितने भी आपको छोटे छोटे लोगों नजर आ रहे हैं ये अकाउंटिंग बॉडीज है. बेसिकली पूरी दुनिया में ये अकाउंटिंग बॉडीज है जिसमें डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज दुनिया में जितनी हैं वो इसमें मेंबर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साफा आईफैक की बात करूं, ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, इसके अंदर 180 ममालिक की अकाउंटिंग बॉडीज है एंड आईसीएमए इज द मेंबर ऑफ आईफैक ऑल्सो. इसके अलावा कापा है, साफा साउथ एशियन फेडरेशन, 7 ममालिक जो साफा के हैं उसका मेंबर है. ये बेटा अकाउंटिंग बॉडीज है, अकाउंट्स की तालीम की ये एक तरह की फेडरेशन है जिसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको हमें फॉलो करना होता है. और फिर ऑब्वियसली जब अगर आप बाहर की कंट्री में इस सर्टिफिकेशन के डिग्री को लेके जाएंगे तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होगी. नेक्स्ट मैम. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि ये पूछना चाहते हैं कि क्या अगर हम ये सर्टिफिकेशन लेते हैं तो क्या ये डिग्री मास्टर्स के इक्विवेलेंट है या बैचलर्स के. दिस सर्टिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री. मैं बार बार सर्टिफिकेशन की बात कर रही हूँ, बच्चा कंफ्यूज होता है कि मैम ये तो सर्टिफिकेशन है, इट इज नॉट अ डिग्री. बट let me tell you, HEC recognize this certification is equivalent to the master's degree. ठीक है, अगर आप कंप्लीट करती हैं चाहे कितना भी टाइम लगता है इसमें, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी. ये सर्टिफिकेशन मास्टर्स की डिग्री के इक्विवेलेंट है. बाकी जितने आपको लोगोज नजर आ रहे हैं इसमें एफबीआर का, स्टेट बैंक का, हम इससे भी कोलैबोरेशन है हमारी. नाउ बात करते हैं हम फ्यूचर सीएमए जर्नी के बारे में कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप किस तरह की स्टडी करेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. बिकॉज स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, मास्टर्स है, फिर फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्कॉलरशिप है, तो फिर हम बात करते हैं इसके बारे में. ओके, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज के हैं? रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. मास्टर मेडिकल, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ओके, ह्यूमैनिटीज हो गया, आईसीएस, ओके, एंड आईकॉम, नो वन. अच्छा, दैट्स वेरी गुड. मैट्रिक के स्टूडेंट को 2 साल के बाद हम देखेंगे, ठीक है ना, तो मैं आऊंगी दोबारा. अच्छा, यहां पे बैठा हुआ जितना भी बच्चा है, अभी हम बात करें 12 इयर्स क्वालिफिकेशन की. इवन ये सर्टिफिकेशन एक सामने बैठे हुए लोगों के लिए भी है जो आपके टीचर्स हैं और इवन
मेरे लिए भी हो सकती है, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले 12 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन बच्चों के लिए। एंड मैं रिपीट करती हूँ, मैं जब क्वेश्चन सुनती हूँ ना, बच्चा बार बार ये कंफ्यूज होता है, मैम ये मेरे लिए भी है, मैम ये मेरे लिए भी है। बेटा ये सबके लिए है, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो, फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट जो होता है, प्री मेडिकल का स्टूडेंट है, प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, आईसीएस का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है। सेकेंड ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आई रिपीट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ के आओगे सेकेंड ईयर में, आपका एडमिशन इधर हो सकता है। बिकॉज ये स्पेसिफिक नहीं है कॉमर्स के लिए बेटा, इसमें मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी है, बिजनेस स्टडीज भी है, कॉस्ट का सब्जेक्ट भी है, लॉ का सब्जेक्ट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, एक सर्टिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड सीएमए, उसके अंदर हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 12 इयर्स क्वालिफिकेशन करके आती हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, यू कैन एनरोल इन आईसीएमए एंड विदाउट एनी एंट्री टेस्ट। आई रिपीट, विदाउट एनी एंट्री टेस्ट, आपकी कोई लिस्ट नहीं लगती है, आप इसमें एडमिशन करवा सकती हैं। रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट भी, और इवन अगर कोई सप्ली का स्टूडेंट होता है तो वो भी करवा जरूर सकता है, लेकिन वो एग्जाम के लिए एलिजिबल तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका एग्जाम क्लियर सेकेंड ईयर का नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट कोई भी हो, यू कैन एनरोल इन आईसीएमए। सेकेंड, ये के रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट कैन आल्सो अप्लाई। और थर्ड, सप्ली के स्टूडेंट, बाद बात होता है कि कोई सप्ली का स्टूडेंट होता है तो वो भी अपने टाइम को जाया किए बगैर आप स्टार्टअप अपना ले सकते हैं। सेकेंड, आपकी तालियां ज्यादा, मुझे लगता है कि बहुत परेशान हाल लोग हैं बच्चे यहाँ पे। 14 years of qualification, वो स्टूडेंट जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से कि तो बैचलर करके आता है, वो भी इसमें एनरोल हो सकता है, इसमें डिफरेंट एग्जाम्पशंस मिलती हैं। फिर मास्टर्स का स्टूडेंट भी है, जो कॉमर्स नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, 14 years में भी नॉन कॉमर्स और कॉमर्स होते हैं, तो इसमें डिफरेंट एग्जाम्पशंस है। ये मैं 14 और 16 years of qualification बेटा, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये टीचर्स और उन लोगों के लिए जो कि फर्दर अगर कोई डिसाइड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए डिफरेंट एग्जाम्पशंस हैं और वो अपना स्टार्ट ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको फर्दर बताती हूँ नेक्स्ट। ओके, जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे प्लीज इसको देखिएगा। सबसे पहले ऑपरेशनल लेवल होता है हमारा, जब आप स्टार्टअप करते हैं यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ऑपरेशनल लेवल एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट इज मेंशन्ड हियर। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, लॉ, मैथ्स। इट इज नॉट अ मैथ्स, अकाउंटिंग इज नॉट अ मैथ्स। ये मेरे पास हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या ये मैथ्स है? मैं आपको भी बताऊंगी कि मैथ्स नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अकाउंटिंग मैथ्स नहीं होती है बेटा। अगर आपको क्लास 8 का मैथ्स आता है, यू कैन गो फॉर अकाउंटिंग एज वेल। अकाउंटिंग इज जस्ट अ नेम ऑफ कैलकुलेशंस, प्लस माइनस हर एक को करना आता है, तो ये वो चीज है। टेक्निकल सब्जेक्ट है एक। मैथ्स जो आप सेकेंड ईयर में इतना मुश्किल पढ़ती हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ये वो चीज नहीं है कि अगर आप ये समझ रही हैं कि मैथ्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ूंगी और फिर मैं ये कर सकती हूँ, तो ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है। इसमें मैथ्स का अगर है तो वो बिजनेस मैथ्स है, और बिजनेस मैथ्स इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपकी एक सेकेंड ईयर की मैथ्स होती है, ये वो उससे बिल्कुल हटके है। ठीक है, तो बेसिक मैथ जरूर है और वो भी उसका एक सब्जेक्ट है। और अकाउंटिंग की अगर बात करूं तो अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेकंड आपका लेवल है मैनेजरियल, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन एमआईएस, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंटरप्राइज मैनेजमेंट, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 2 लेवल्स हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आपका थर्ड लेवल है दैट इज स्ट्रेटेजिक लेवल एंड देन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। तो ये आपके तकरीबन 4 साल लगते हैं टू कंप्लीट दिस सर्टिफिकेशन। दिस सर्टिफिकेशन इज इक्वल टू द मास्टर्स डिग्री, और टोटल इसमें 18 पेपर्स हैं जो कि आपको पास करने हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू कंप्लीट दिस सर्टिफिकेशन इन 4 years। 4 साल नहीं जरूरी है कि आप इसको कंप्लीट करने में लगाएं। अगर आप ये 18 के 18 कोर्सेज 4 साल से पहले कंप्लीट करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। कैसे करेंगी? बिकॉज हमारे जो है वो सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होते हैं वो हर 2 माह के बाद होते हैं। हर 2 माह के बाद हम नॉर्मली कंडक्ट करते हैं इंटरनेशनल जो हमारे करिकुलम है या हमारे हमें दिया हुआ है रूल्स, तो उसके जरिए हमें हर 2 माह के बाद एग्जाम लेने हैं। अगर आप समझती हैं
कि आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं. आफ्टर एवरी 2 months यू कैन गिव द पेपर एंड पास द एग्जाम आफ्टर एवरी 2 months. और अगर आप 3 साल में कर लेती हैं, 2.5 साल में कर लेती हैं, 4 साल में कर देती हैं, तो ये आप कर सकती हैं. हमने आपको बाउंड नहीं किया हुआ कि आप 4 साल में करें. तो आप मास्टर्स की डिग्री बिफोर 4 years ले सकती हैं. बस आपको एग्जाम्स कंप्लीट अपने करने हैं हर 2 माह के बाद. और एग्जाम कैसे होते हैं? इट इज नॉट अ रिटन एग्जाम. हम कोई रिटन एग्जाम नहीं लेते अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स. हमारा सीवी एग्जाम होता है. सीवी एग्जाम क्या है? दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं. 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें 60 मार्क्स आपके एमसीक्यूज हैं और 40 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव हैं. हम आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं. हमारी आईटी रूम्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज एंड आईटी रूम्स. उसमें ये है कि हम आपको लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं. आप वहीं पे एग्जाम दीजिए एंड विद इन 15 days आपका रिजल्ट आ जाता है और फिर आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस की तरफ चले जाते हैं. तो जो पेपर्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव का है. स्ट्रक्चर बेटा एज कंपेयर टू द यूनिवर्सिटीज, मैं अभी कंपेयर नहीं कर रही यूनिवर्सिटीज को, सिर्फ मैं अपनी इदारे की बात कर रही हूँ. आजकल के दौर में फी देना ऑब्वियसली दैट इज वेरी डिफिकल्ट. ऑब्वियसली एक फैमिली में 3 से 4 लोग होते हैं अगर यूनिवर्सिटी गोइंग, तो बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए फीस को एडजस्ट करना. सो फी जो है आपकी रजिस्ट्रेशन फी इज 11,500, एनुअल चार्जेस 3,400, 14,900. ये पहले कॉलम की मैं बात कर रही हूँ. ये 12 years क्वालिफिकेशन होल्डर के लिए है. इसके अलावा सब्जेक्ट की फीस 16,000 है. अगर आप एक एक करके सब्जेक्ट लेती हैं तो वो भी आप ले सकती हैं. 3 लेती हैं तो वो भी ले सकती हैं. 3 करके सब्जेक्ट होगा तो अराउंड 50,000 के करीब हमारी फी बनती है. स्टार्टिंग की फी मैं बात कर रही हूँ अलॉन्ग विद दिस रजिस्ट्रेशन. यू कैन पे दिस फी इन इंस्टॉलमेंट्स एज वेल. 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स हो सकती हैं जो आप कम करके दे सकती हैं. और 14 years ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए भी है और 16 years ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए भी फी है. इसमें आपका जर्नी जो है, इसमें ये जो 4 आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, AFA लिखा हुआ है, फिर CMA लिखा हुआ है, फिर ACMA है एंड देन FCMA. ये बेसिकली बेटा सर्टिफिकेशंस के नाम है. टोटल ओवरऑल CMA की सर्टिफिकेशन है दैट इज फॉर चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. उससे पहले जो आपको मिलेगी 12 पेपर कंप्लीट पहले आप करेंगी, 18 में से 12 पेपर पहले कंप्लीट करेंगी, आपको मिलेगा AFA लेवल सर्टिफिकेट. एफिलिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट CMA इंटर क्वालिफाइड. CMA इंटर क्वालिफाइड की वर्ड अलग है मार्केट में. जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं. जॉब्स भी मैं आपको बताऊंगी. अगर आप जॉब करना चाह रही हैं आप अपनी स्टडीज के साथ साथ, ICMA आपको प्रोवाइड करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी. बिकॉज वी हैव अ डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन इन जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. हम आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं. हम अगर करना चाहती हैं इंटर्नशिप जॉब्स तो AFA लेवल के सर्टिफिकेट पे यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब. पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी. इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर्स जो हमने अभी वीडियो में दिखाए थे, जहां भी आप करना चाहती हैं ICMA आपको प्रोवाइड करेगा जॉब अपॉर्चुनिटीज. कंप्लीशन ऑफ CMA पे आपको CMA का सर्टिफिकेट मिलेगा. 3 years और 4 years 5 years की वर्क एक्सपीरियंस पे आपको एसोसिएट मेंबर और फेलो मेंबरशिप की भी सर्टिफिकेशन मिलेगी. ये तो जब आप पार्ट बनेगी ICMA का इंशाल्लाह तो फिर आपको ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आएगा. लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है कि ये आपकी सर्टिफिकेशन है पूरे CMA के जर्नी में. अच्छा, अब स्टडीज की बात हम करते हैं कि स्टडीज कैसे कर सकते हैं. आपकी फिजिकल क्लासेस भी हो सकती हैं. अगर आप फिजिकली आप पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं फिजिकली, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं. मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून की क्लासेस हैं. इसके अलावा वो बच्चे जो कि नहीं आ सकते, जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी फैसिलिटी है बेटा कि आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं. वी प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सॉफ्ट बुक्स, डाउनलोडेड आप बुक्स कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आपके आउटलाइन आपको प्रोवाइड की जाती है. एवरी 2 months के बाद आप घर बैठ के आप एग्जाम दे सकते हैं. नॉट आप ये कि घर बैठ के एग्जाम दे, आप यू हैव टू कम टू द इंस्टीट्यूट एंड गिव द एग्जाम. लेकिन आप अपनी पढ़ाई घर बैठ के कर सकते हैं. वो बच्चे जो कि घर बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर फिजिकली क्लास लेना चाह रहे हैं तो ICMA का जो इदारा है वो इस्लामाबाद कैंपस में है. मैं फर्दर आपको भी बताऊंगी कहाँ पे है. कैंपस में आप आएंगी, क्लासेस लेंगी,
इसके अलावा जो हमारी फैसिलिटीज हैं, मैं आपको बाय एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन में आपको इस्लामाबाद कैंपस का एक टूर भी करवाऊंगी। हमारी डिफरेंट फैसिलिटीज हैं। स्कॉलरशिप, बेटा ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जिनके सेकेंड ईयर में 80% तक मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह दे कैन गेट 50% स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप। इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। स्टूडेंट्स नीडी भी होते हैं, जरूरतमंद भी होते हैं, हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं अप टू 100%। मेरिट स्कॉलरशिप की मैं बात करूं तो व्हाट 80% पे आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर बच्चा 91% मार्क्स लेता है 75% वेव ऑफ हो जाएगी फी उनकी। इसके अलावा अगर कोई पोजीशन होल्डर है तो अप टिल 100% भी स्कॉलरशिप है। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज है मेरिट के, स्कॉलरशिप के 50%, 75% एंड 100%। इसके बाद आपकी किंगशिप स्कॉलरशिप है, दो बहन भाई आते हैं तो जब तक वो पढ़ेंगे तब तक 25% डिस्काउंट होता है। उसके बाद हाफिज़े कुरान पे भी 25% डिस्काउंट है, स्पेशल चिल्ड्रन पे डिस्काउंट है, नीड बेस्ड डिस्काउंट है। वी हैव साइंड MOU विद अकबर फाउंडेशन एंड पाकिस्तान बैतुल माल ऑल्सो। अगर आप बहुत नीडी हैं तो आपकी 100% फी रिटर्न होगी बैतुल माल के जरिए। हम वहां पे भी एप्लीकेशन भेजते हैं बिकॉज मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो नीडी भी हैं और जरूरतमंद होते हैं, पढ़ना भी चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते ड्यू टू देयर फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उसमें यह है कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हम इंस्टॉलमेंट्स पे भी पेमेंट करते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। CMA जो है उसकी स्किल्स कैसी डेवलप हो सकती है। आपने CMA की सर्टिफिकेशन ले ली, आपकी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, किस किस चीज में, किस किस एरियाज में एक्सपर्टीज है। लीगल अफेयर्स में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग बेसिकली बेटा अकाउंट्स की जो तालीम है उसको समझना जरूरी है कि अकाउंट्स होता क्या है। बिजनेस जो बिजनेस मैटर्स हैं उनको किस तरीके से चलाना है, हमें कितना प्रॉफिट होता है बिजनेस में, कितना हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरीके से हम प्रॉफिट को ज्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ये अकाउंटिंग है, उसकी कैलकुलेशंस को उनको समझने के लिए, जो बिजनेस मैटर को समझने के लिए CMA क्वालिफाइड जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो जब आप ये तालीम हासिल करते हैं तो उनकी आपकी एक्सपर्टीज जो है वो इन एरियाज में आती है। रिसोर्सेज एलोकेशन में, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में, बिजनेस को प्लान कैसे किया जा सकता है, उसके डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं, आपकी इस तरह एक्सपर्टीज आ सकती है। अच्छा, अब क्या सैलरीज है ICMA क्वालिफाइड्स की, इसके बाद किस किस पोजीशंस पे जा सकते हैं। CEO CFOs की पोजीशंस में, CEO की पोजीशन पे फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स बन सकते हैं, कॉर्पोरेट कंट्रोलर बन सकते हैं, CEO की पोजीशंस हो सकती हैं। जितनी भी टॉप लीडिंग पोजीशंस हैं कंपनीज की, उसके लिए CMA जरूरी होता है या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी होता है। पाकिस्तान में टॉप लीडिंग पोजीशंस के लिए दो सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, या तो CA या CM। तो दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। एवरेज सैलरी भी आपको बताई गई है। किस किस जगह पे CMA क्वालिफाइड काम करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड लीगल स्टेट में, एजुकेशन सेक्टर में, होलसेल और रिटेलर में। इस वक्त पाकिस्तान में 60,000 अकाउंटेंट्स हैं ऑल ओवर, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स भी आ रहे हैं, CCA क्वालिफाइड भी आ रहे हैं। 231 मिलियन की आबादी है इस वक्त हमारी, लेकिन 60,000 अकाउंटेंट्स हैं और हमें बहुत ज्यादा अकाउंटेंट्स की जरूरत है। ऑब्वियसली हर कंपनी के लिए अकाउंटेंट्स, इट इज नॉट लाइक जैसे आपको बैंक की जॉब आप कर लें, और हर कंपनी में आप ट्रस्ट नहीं बेटा कि आपको अकाउंट्स की जरूरत है और हमें अकाउंटेंट्स चाहिए, बिजनेस एनालिस्ट चाहिए हमें। तो आपके जैसे बच्चों की हमें जरूरत है। और सिर्फ बॉयज के लिए डिग्री नहीं है, गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है। तो आपको इस तरफ सोचना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले आपको बताती चलूं, जो मेन एक एग्जाम्पल है, जैसे स्टेट बैंक के जो गवर्नर है, ही इज आवर मेंबर, CMA क्वालिफाइड है। आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सर्टिफिकेशन। इसके टॉप लीडिंग जो 3 पोजीशंस हैं स्टेट बैंक की, वो CMA क्वालिफाइड ही वहां पे बैठे हुए। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है आपकी जावेद गुलाम मोहम्मद है, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
मार्टिन डो ग्रुप के, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये हमारे तकरीबन 11 कैंपसेस, ये कैंपसेस हैं। ये इस्लामाबाद कैंपस का एड्रेस है, यू कैन नोट इट डाउन। और आप इस्लामाबाद कैंपस में H9 में है ये कैंपस। आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकती हैं, मैं आपको अभी रिपीट करूंगी अपना नंबर। यहाँ पे ऑफिशियल हमारे नंबर्स हैं। अगर आप इफ यू नोट डाउन माय ऑफिशियल नंबर, माय पर्सनल नंबर, तो आप मेरा नोट डाउन कर सकती हैं। दैट इज 0332-8542-33। ठीक है, तो उसमें ये कि आप मुझसे फर्दर क्यूरीज भी कर सकती हैं। आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट, आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आप कैंपस विजिट कर सकती हैं, हमारे एडमिशन ओपन रहते हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकती हैं, अपने पेरेंट्स को ला सकती हैं। मुझे ये लगता है कि बच्चों से ज्यादा हम पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग हमें करनी चाहिए, ताकि हम, बिकॉज एट द एंड हमें पेरेंट्स को भी समझाना है। पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं तो बच्चे भी कर लेते हैं। बेटा आजकल का दौर ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है। अपना इंटरेस्ट जरूर देखिए, इसके बाद अपना जॉब स्कोप जरूर देखिए उस डिग्री का, कि क्या मार्केट में उसका स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी उस डिग्री की, सर्टिफिकेशन की, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आप अफोर्ड कर सकती हैं कि नहीं, स्कॉलरशिप्स अगर आप ले सकती हैं कि नहीं ले सकती, आप के लिए इस्लामाबाद में रहते हुए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जरूर देखिए। बिजनेस स्टडीज को कंटिन्यू करना चाह रही है तो कौन कौन सी डिग्रीज हैं। इस उम्र में बच्चा जो है वो सिर्फ इंटरनेट तक महदूद रह जाता है और सोशल मीडिया तक महदूद रह जाता है। लेकिन बेटा ट्रस्ट मी, आपका ये टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सर्च करें। अभी से अगर करेंगी तो डिसाइड कर पाएंगे आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स कि मैंने किधर जाना है। और ये टाइम ट्रस्ट में बहुत शॉर्ट है, आपका 4-5 महीने बहुत कम है आपको डिसाइड करने में। यूनिवर्सिटीज को सर्च करें, देखें सब्जेक्ट्स कौन से ऑफर करें। और ये जो वीक था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत यूनिवर्सिटीज आई आपके पास, 5-6 अभी आएंगी फर्दर यूनिवर्सिटीज, आपको बताएंगी। आपके लिए चांस है, आप डिसाइड कर सकें कि आप किधर जाना चाहती हैं। ठीक है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। सो विद दिस थैंक यू सो मच कि आपने आज इधर आप लोग आए। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज, आई एम हियर टू हेल्प यू। आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई विल प्ले अ वीडियो, अ शॉर्ट वीडियो ऑफ इस्लामाबाद कैंपस। मैं आपको छोटा सा टूर कराऊंगी कि इस्लामाबाद क्या है, इस्लामाबाद कैंपस में क्या है। प्लीज। Welcome to ICMA Pakistan, where your success is our passion. Established in 1951, envisioning to be one of the largest professional accounting bodies, ICMA Pakistan has its presence nationally and around the globe. With 12 campuses across Pakistan, our campus in Sector H9, Islamabad, stands out as a beacon of excellence. Your journey with us starts as you step into our reception. The spacious lobby serves as a central hub connecting various parts of the campus, highlighting our glamorous past and paving the way for a bright future. The campus is headed by Director Islamabad, working with dedication to provide you the support and assistance as you connect with us. At ICMA Pakistan, we have always believed in the growth of the student, not only in the field of accounting and finance, but also encouraging them to be the part of business ecosystem. For this purpose, our Idea Center is where creativity takes shape, allowing students to collaborate, innovate, and redefine their future. Our campus nurtures its students with facilities including mosques, a library where students can easily access their curriculum books, IT labs with computer systems for seamless computer-based examinations and trainings throughout the year. Dedicated classrooms for interactive learning, incubation center to foster creativity, cafeteria,
council rooms for internal meetings and meetings with corporate partners. Pakistan takes pride in conducting seminars, trainings and conferences for the members and students nationwide. We are rising high every day under the leadership of National Council and Executive Directors. For us, sky is the limit. Join ICMA Pakistan and explore the vast avenues with us. उसने फर्स्ट ईयर में मतलब एक साल के अंदर अप्लाई नहीं किया तो वो दोबारा कर सकते 6 मंथ या 1 ईयर के बाद। एफएससी नहीं किया तो एफएससी कर ली है पर एडमिशन नहीं लिया। ओके, तो वो कब तक लिमिट होगी? एनी टाइम। अगर एफएससी कर लिया, 1 साल में अप्लाई नहीं किया तो आप कभी भी कर सकते हैं। अगर 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, आप यही पूछ रही है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, हॉस्टल फैसिलिटी, अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्टल फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन वी आर प्लानिंग टू मेक अ टावर ऑफ ICMA। अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, तो होपफुली शायद हमारा हो जाए। लेकिन हम हॉस्टल की जो इंफॉर्मेशन है वो जरूर प्रोवाइड करते हैं कि जो नियर बाय हॉस्टल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो रह रही हैं, हम जरूर इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, तो आप खुद से कर सकती हैं। लेकिन ICMA का अपना जो हॉस्टल है वो अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। ट्रांसपोर्ट की हाँ हम फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? मुझे लगता है गर्ल्स को या तो बहुत समझ आ गया या बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बिल्कुल नहीं। जी बेटा, या As you said, you please tell about the duties of business and be written and tell us about the duties of designing. डिजाइनिंग, बिकॉज ओके, डिजाइनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ICMA। एक्चुअली हम लोग नहीं डिजाइनिंग का कोई सब्जेक्ट देते हैं, हमारा सिर्फ CMA की सर्टिफिकेशन है। बट देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन इस्लामाबाद, इन पिंडी ऑल्सो, NCA है आपका, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है जो कि ऑफर कर रही है आपको डिजाइनिंग। कॉन्सेप्ट है ये आपको डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स करती है। तो ICMA नहीं कर रहा, लेकिन देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज who offers designing degree and all. So if you have an interest in designing, so we should go for there. ठीक है? Yes. स्कॉलरशिप्स हैं, बिल्कुल। जी जी, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप नहीं है, जो नेशनल लेवल पे कैंपस टाइप मतलब हमारी जो ICMA की स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारी है, ठीक है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स नहीं। एनी अदर क्वेश्चन? हमको हम ह्यूमैनिटीज करके भी कर सकते हैं क्या? देखिए, हम CMA करवाते हैं, आप ह्यूमैनिटीज करके बिल्कुल कर सकती हैं, इस तरफ को आ सकती हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका FA है या आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो आप नहीं कर सकती हैं, बिकॉज हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ाते हैं इसको ना। आई थिंक ये भी लिए हमें स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नो, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग, देखिए जरूरी है कि अगर कॉमर्स का सब्जेक्ट है फिर तो बहुत अच्छा है कि ICOM का बच्चा आता है, लेकिन अगर ह्यूमैनिटीज में करके आते हैं तो वो हम बिल्कुल बेसिक्स पहले पढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मैंने फंडामेंटल कहा, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब पहले आपको ABC पढ़ाई जाएगी अकाउंटिंग की, राइट, और उसके बाद आपको मेजर्स पढ़ाए जाएंगे। तो कोई मसला नहीं है उसमें, आप कर सकती हैं। थैंक यू जी। या अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है तो हमारे मार्क्स कितने होने चाहिए? मार्क्स मैंने आपको बताया कि जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया है, आपके सप्ली नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकती हैं, और इवन अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी सप्ली भी होती है तो आप एडमिशन तो तब भी ले सकती हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो 40-45% तक मार्क्स एलिजिबल है, आप कर सकती हैं, एडमिशन ले सकती हैं, ठीक है। बिकॉज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, वंस यू गेट इन तो फिर आपको मेहनत करनी है इसके लिए, और दैट्स इट। जी बेटा आइए। या क्या एक्सचेंज प्रोग्राम को मॉनिटर करता है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम? देखिए, हमारी फ्यूचर में कोलैबोरेशंस हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, इंशाल्लाह फ्यूचर में है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल रिकग्निशन ही काफी है। जब मैंने आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन का कहा ना,
तो काउंटिंग बॉडीज की दिस सर्टिफिकेशन एज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो यही हमारे लिए काफी है कि अगर आप बाहर के कंट्रीज में जाती हैं तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो इट इज पॉइंट इनफ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फीडबैक फॉर्म दिए हैं बच्चों, आप फिल करके फीडबैक आप काइंडली हमें रिटर्न बैक करें, और कोई क्वेश्चन है तो कभी आप पूछ सकती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।